Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Hello everyone, welcome to Simrish Tutorials. My name is Simran Behel and today we are going to start with the last poem of our class 10th English syllabus. The name of the poem is For Anne Gregory. It is written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. So let's begin. Let's start with a brief introduction of the poem. This poem is in the form of a conversation between a young man and a young woman. ये poem जो है एक conversation की form में दी गई है between a young man and a young woman. The first and third stanza was spoken by the young man. जो first and third stanza है that is spoken by the young man, while the second one is by the young woman. जो second stanza है, 3 stanzas की हमारी total poem है जिसमें से first and third जो है young man ने बोला है और second stanza young woman ने बोला है. The young man tries to tell the woman that there is no one in the world who will value you for your true inner worth. कि जिसे हम कहते हैं रियल लाइफ में कि एक सूरत होती है और एक सीरत होती है. सूरत से हमारा मतलब होता है हमारे फिज़िकल फीचर्स, कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी सुंदरता, ये सारे फीचर्स होते हैं, वो हमारी सूरत में काउंट होते हैं. और हमारी सीरत होती है कि हम अंदर से कैसे इंसान हैं, कि हम क्या, हमारा नेचर अच्छा है या नहीं, क्या हम बुरे हैं, अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, आलसी हैं. ये हमारे अंदर की इनर सेल्फ की बात हो रही है. तो यंग मैन यहाँ कहता है कि कोई भी तुम्हें, उस लेडी, उस वुमन को वो ये कह रहा है कि यू विल नॉट फाइंड एनीवन इन दिस वर्ल्ड जो तुम्हारी ट्रू इनर वर्थ को, तुम्हारी सीरत को लव करेगा कम्प्लीटली. ही सेज दैट इट इज़ ओनली गॉड, कि सिर्फ गॉड ही इकलौते हैं जो तुम्हें प्यार करेंगे ज़िंदगी भर, तुम्हारी इनर वर्थ को देखने के बाद भी. सिर्फ तुम्हारी इनर वर्थ को देखने के बाद सिर्फ एक गॉड ही है जो तुम्हें प्यार करेंगे अनकंडीशनली. इसका मतलब ये है कि चाहे हमारी सीरत में 10 अच्छी चीज़ें हों, लेकिन हो सकता है कि कोई 1-2 चीज़ें बुरी हों जिसकी वजह से हमें कोई इंसान नापसंद करे. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस यंग मैन के सिर्फ एक गॉड ही है जो तुम्हारी उन इम्परफेक्शंस को देख कर भी तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करेंगे. On the other hand, the young woman tries to impress upon the man that she won't accept anyone who loves her for her looks but does not care for her inner soul. Woman यहाँ कहती है कि मैं ऐसे किसी भी इंसान को प्यार नहीं करूँगी कभी भी, पसंद नहीं करूँगी कभी भी, जो सिर्फ मुझे मेरे लुक्स के लिए पसंद करे और मेरी इनर वर्थ या मेरे इनर सोल को एक्सेप्ट ना करे या उसकी परवाह ना करे. मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं जाऊंगी और मैं कभी ऐसे इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करूंगी. लेट्स स्टार्ट विद द रेसिटेशन. Anne Gregory. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. By William Butler Yeats. So, this is the poem For Anne Gregory. Now, let's start with the stanza wise explanation of this poem. Stanza 1. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. In the first stanza, the poet says to Anne Gregory that a young man can become sad and hopeless if you reject him.
पोएट एक जो हमारा है वो बता रहा है कि यंग मैन, जो इस पोएम में जो कन्वर्सेशन की बात की गई है, यंग मैन ये कन्वर्सेशन कर रहा है कि एक यंग मैन जो है वो सैड और होपलेस हो सकता है अगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। किसे कह रहा है? एन ग्रेगरी को। The poet goes on to describe her beauty and says that she has such beautiful golden hair that anyone will fall in love with her. वो कहता है पोएट हमारा कि एन ग्रेगरी के बाल इतनी खूबसूरत है, इतनी गोल्डन है कि कोई भी इंसान उससे प्यार कर बैठेगा. They fall on her ears and seem like they are protecting them in a similar way as a boundary wall protects the fort. वो कह रहे हैं कि आपके बाल इस कदर ईयर्स के ऊपर आते हैं. एन ग्रेगरी को पोएट बता रहा है कि इस वे में आपके बाल जो है आपके ईयर के ऊपर आ रहे हैं जैसे कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें, जैसे कि एक बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट करती है फोर्ट को. Here the poet has compared Anne Gregory to hairs to wall. यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहा है उसके वो बालों को? उसके फोर्ट से. Here the poet has compared Anne Gregory's hair to wall. उसने बोला है कि आपके बाल कैसे हैं? वॉल के जैसे हैं, वो वॉल जो फोर्ट को प्रोटेक्ट करता है. Her hair symbolizes the outer beauty that prevents anyone from looking inside her soul. उसके हेयर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? उसकी आउटर ब्यूटी को, जिसकी वजह से कोई भी उसके इनसाइड नहीं देख पा रहा, उसके सोल को नहीं देख पा रहा, सबका ध्यान उसके बालों पर ही रह जाता है. Any man gets easily attracted to her and does not look into Anne's character and real nature beyond her beauty. कोई भी जो है वो उसके कैरेक्टर को नहीं देख पाता, सिर्फ उसकी ब्यूटी पर ही उनका ध्यान रह जाता है. That's why the poet feels that no one can love Anne for her real nature without her outward beauty. कह रहे यही रीज़न है कि पोएट को लगता है कि एन के रियल नेचर के लिए उसे कभी कोई लाइक नहीं करेगा, उसे कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि सबका ध्यान तो उसकी आउटवर्ड ब्यूटी पर ही है. वन कैन ओनली लव हर फॉर हर गोल्डन हेयर एंड फिजिकल ब्यूटी. वो यही कह रहे हैं कि तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारे गोल्डन हेयर की वजह से ही लोग प्यार करते होंगे. स्टैंजा 2. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. In the second stanza, Anne says to the poet that she can change her hair color, she can get her hair dyed, color her hair brown, black or carrot. She means that एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ टेम्प्रेरी, इट कैन चेंज एट एनी टाइम. तो यहाँ पे एन ग्रेगरी स्टार्ट करती है कि जो मुझे मेरे गोल्डन हेयर के लिए पसंद करते हैं, व्हाट इफ़ मैं अपने बालों को डाई कर लूँ ब्राउन में, ब्लैक में या कैरेट कलर में. इसका मतलब तो यही हुआ कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो टेम्प्रेरी है एंड कभी भी बदली जा सकती है. सो द मैन हु लव हर विल सी हर एक्चुअल नेचर बिहाइंड द ब्यूटी. कह रही व्हाट इफ़ मैं ये डाई कर लूँ और उसके बाद शायद जो मैन मुझे प्यार करते हैं मेरी फ़िज़िकल फीचर्स को देख के, क्या पता वो मेरे एक्चुअल नेचर को देखकर मेरी उस ब्यूटी को भी अप्रिशिएट करें, पसंद करें. शी होप्स दैट द मैन हु फॉल्स इन लव विद हर विल लव हर फॉर व्हाट शी इज़ एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर एंड एक्सटर्नल ब्यूटी. वो ये होप कर रही है कि काश एक ऐसा आदमी हो जो उसे प्यार करे और उसको प्यार करने के लिए वो उसकी इनर सोल को प्यार करे रादर देन हर येलो हेयर एंड एक्सटर्नल ब्यूटी. स्टैंजा 3. I heard an old religious man but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. लास्ट स्टैंजा में पोएट रिप्लाई करते हैं कि एन जो है उसकी बातें सुनने के बाद, थॉट्स को सुनने के बाद, जो उसकी थॉट्स है इंटरनल ब्यूटी को लेके कि लव सिर्फ इंटरनल ब्यूटी से होना चाहिए और एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं. वो कहते हैं दैट ही हैड हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, उन्होंने एक धार्मिक इंसान को बोलते देखा कि सिर्फ गॉड ही हैं, दैट ओनली गॉड कैन लव अस फॉर व्हाट वी आर, कि जैसे हम हैं उसके हिसाब से हमें सिर्फ एक गॉड ही हैं जो इतना प्यार कर सकते हैं, वैसा जैसा एन ग्रेगरी एक आदमी से मांग रही है.
एंड ही कैन प्रूव दिस बाय द फैक्ट मेंशन्ड इन अ रिलीजियस बुक। और वो कहता है, वो जो हमारा रिलीजियस मैन है, वो कह रहा है कि मैं ये प्रूव भी कर सकता हूँ क्योंकि उसकी रिलीजियस बुक में कहीं पे यही बात एग्जैक्टली लिखी है। वो ये भी कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे देखकर ही उनकी शाइन और ग्लिटर देखकर ही कैरिड अवे हो जाते हैं। ह्यूमंस ऑलवेज लुक फॉर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस एंड आर कैरिड अवे बाय द शाइन एंड ग्लिटर। दे डू नॉट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग टू लुक इनटू द सोल ऑफ अ पर्सन। वो कहते हैं कि कोई भी डीप अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है उनके दिमाग में किसी के सोल को समझने के लिए। ओनली गॉड कैन डू सो एंड लव अस फॉर आवर इनर क्वालिटीज़। वो कहते हैं सिर्फ एक गॉड ही हैं जो हमें समझ सकते हैं और हमारी इनर क्वालिटीज़ के लिए हमें प्यार कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर पोम। लेट्स स्टार्ट with some poetic devices or literary devices in this. So the first literary devices we can see is alliteration. There is a lot of repetition of the consonant S at the start of two consecutive words. जैसे कि यहाँ पर दे रखा है set such. In the second stanza we can see set such. तो SNS, that is alliteration. He had your yellow. Here we can find that he had found. So he had. So these are some examples of alliteration in this poem. Next is anaphora. Anaphora means repeated use of a word at the beginning of two lines. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है that he, that only God. That he, यहाँ पे देख रहे हैं हम, that has been used twice ऊपर नीचे की दो लाइन्स में. So that he had found a text to prove that only God my dear. तो यहाँ पे that and that की जो repetition है उसको यहाँ anaphora कहा गया है. beginning of two lines में जब ये होता है तो इसे हम anaphora कहते हैं. यहाँ पे metaphor का strong use है. honey colored rampart at your ear. Anne के बालों को, Anne's hair is compared to the ramparts of a fort. एन के बालों को किससे कंपेयर किया है? रैम्पार्ट्स से, यानी जो बाउंड्री वॉल होती है फोर्ट की. रैम्पार्ट का मतलब है बाउंड्री वॉल. उसके अलावा हम यहाँ पे राइम स्कीम का यूज़ देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस द राइम स्कीम इज ABCBDB. द राइम स्कीम इज ABCBDB. लेट्स ट्राई. So man, declare. So A, B, prove. अब ये तीनों आपस में नहीं हो रहे तो A, B and C. Dear, declare और dare. So A, B, C, B. आगे क्या है? D, A, B, C, B. आगे है D, B. तो alone इनमें से किसी से नहीं हो रहा तो alone को हम D बोल देंगे. अब declare, dare और hear ये तीनों आपस में राइम कर रहे हैं तो हमने इसको B कर दिया. तो A man, declare B, proof C, dare को B बोलेंगे क्योंकि declare और dare एक जैसा लग रहा है. alone अलग है इन सब में तो उसको हम D कर देंगे. एंड hear, dare एंड declare को हम B में रखेंगे. तो हमारी राइम स्कीम बन गई A, B, C, B, D, B.